नेक्स्ट वीक है क्या? हाँ हाँ 2 minutes left. And 2 minutes left. we are already going on YouTube. Okay. So I think we can start after 1 minute. Okay. Atul bhai, you can go ahead. Just a minute, मैं recording दबा दूं. Yes, अतुल भाई, मोस्ट वेलकम. सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. और अब हम शुरुआत शुरू करिए. रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના પ્રવચન ગણેશજી, પ્રજ્ઞાના દેવતાના વક્તા શ્રી નંદકુમાર રાઉતજી, મંજુષા વાનખેડે તેમજ શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સૌ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, Hidden shining light, in every shining in creature. every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, Oh, hidden embracing all in embracing all oneness. in oneness. May each who fills himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Thank you. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई. और बस सभी को पहले गणेश जी की तरफ से और गणेश जी की ओर से और हमें गणेश जी की दोनों को वंदन. तीनों वक्ता आ गए हैं. धन्यवाद नंदकुमार जी, हर्षवर्धन भाई और मंजुषा जी. गणपति के इस विशेष व्यस्त दिन में भी आप तीनों यहाँ हाजिर हैं तो बहुत बड़ी बात है. मैं यही कहूँगा, जय गणेश. तो शुरुआत करते हैं. नंदकुमार जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं और स्वस्थ हो गए आप, और वापस स्वस्थ होके त्रिवेणी मीटिंग में आज शंखनाद कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. नंदकुमार राउत जी बी हैं सिविल, और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से अपना ये पदवी हासिल की है, डिग्री हासिल की है. रिटायर्ड हुए 2015 में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से. टीएस के मेंबर काफ़ी समय से हैं. सबसे पहले उन्होंने अकोला लॉ से मेंबरशिप ली 1 दिसंबर 1997 में. फिर वो ट्रेजरर बने अकोला लॉज के, और उसके बाद 2008 से 2016 तक लगातार वो खजांची रहे, यानी कि ट्रेजरर रहे. प्रेसिडेंट अकोला लॉज के 2016 से 2019 तक रहे, और मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी वो 2016 से 2019 तक प्रेसिडेंट रहे हैं. बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, काफ़ी नॉलेज है, और नेशनल लेक्चरर तो वो हैं ही 2019 से. आपका स्वागत है. और आज जो का विषय जो है उससे हमें सराबोर कर दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल. Good evening, everybody. Today is Ganeshchaturthi, and this festival is celebrated with great spirit and enthusiasm throughout the Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, etc. In view of this, Brother Taralji has specifically selected this topic, and now
in today's discussion, let us see how Ganesha is God of wisdom. It is said in Hindu tradition that Parvati, wife of Shiva and mother of Ganesha, saw the syllable Om, her powerful glance transform the sacred word into coupling elephants, which gave birth to Ganesha and then resume the form of Om. The large elephant head of the Lord Ganesha symbolizes wisdom, understanding, and a discriminating intellect that one must possess to attain perfection in life. The wide mouth represents the natural human desire to enjoy life in the world. Rigveda begins with the invocation of the Lord Ganesha, who is described as the chief of Gana, means divine wisdom, divine beings. Gana means divine beings, and as the supreme seer. Yajurveda also mentions salutations to your Ganas and to your Lord Ganas, that is Ganesha. So Ganesha is Shiva's son and representative. Lord Shiva represents the unbounded consciousness beyond the limits of dualistic mind. Ganesha is not only a deity in the macrocosm, he also symbolizes intelligence, that is buddhi, in the human body. In creation, he represents Mahat, means universal mind, the highest form of Prakriti, that is nature. Intelligence, that is buddhi, which is responsible for our reasoning and is considered the higher mind in modern parlance. Ganesha also appears in Buddhism, not only in the form of Buddhist god Vinayaka, but also portrayed as a Hindu deity form, also called Vinayaka. His image may be found on Buddhist scriptures of the late Gupta period, Samrat Gupta period. Ganesha is thus the remover of obstacles. Even devotees of Buddhism and Jainism propitiates him first, seeking his sanction in their invocation of their chosen deities. He is that aspect of cosmic intelligence which aids the awakening and growth of those who are divinely disposed. He apparently helps the wicked also, but ultimately arrests their untoward undertakings. In this sense, Ganesha is called Vigneshwara, the Lord of obstructions. He is capable of creating hindrances as well as clearing of hindrances. Though through either mode, he brings God to all concerned. He brings good to all concerned. Sometimes what is sought after by the devotee is not sanctioned. The disappointment brought about thereby is no doubt sharp. But in due time, it is realized that the seeming obstruction is a blessing in disguise. Vigneshwara wields the affairs of the world in such a way that the greater evils of life are warded off through the intervention of lesser evils. The ceremonial sanction and support of Vigneshwara
is sought after in all new undertakings. Whatever is undertaken, ignoring the Lord of wisdom is bound to meet with impediments. And therefore, devotees circumambulate his image or perform such action as knocking thrice on the head, holding the left ear with right hand and right ear with left hand, and sitting or standing as a mark of submission and obedience. In a child, such sanctification arouses the imagination and creates a living contact between the visible human and the invisible superhuman. It induces devotion in little children. It gives a practical shape to the verge in the eyelid, every child, for a healthy and loving relationship with its comrades. Such acts as the giving of edibles dedicated to the deity and the sharing of their distribution amongst themselves become the means for the removal of obstruction through inherent selfishness. The enlightened man invokes Ganesha through intense mental invocation. His inward prayer consists of the intention to act with fervent wish that his undertaking be in tune with the cosmic harmony and the divine will, and that if it should be counter to it, it might as well meet with the fate if deserved. Such a true devotee is deeply aware of the potent force that streams through Ganesha and recognizes that though success and failures alike, he can learn progressively how to set his feet more firmly and squarely on the path. He is also keenly appreciative of the symbolic attributes of the elephant-headed god. He realizes that the trunk of Ganesha is curved around his tusk. The power within the trunk is the sense of smell, which in elephant is the channel of experience par excellence. The symbolic significance of this is suggested in the yoga system, wherein Muladhara, the root center of the mortal body, is related to the elephant or Ganesha, as well as to the bottom of the spine and elimination center. Thus, Ganesha stands at the beginning of the pilgrimage through the chakra centers, and it is he who must be propitiated to remove all obstacles. Propitiated means to make him calm. In the secret doctrine, the earth is spoken of in relation to the rudimentary sense of smell. The other senses are related to the water, fire, air, and ether, and are said to be fused in the sense of smell. The last of the series to evolve. Related to this powerful sense is that form of memory associated with the psychic realm and also pertaining significantly to the libido.
Ganesha, being a symbol for such characteristics, embodies the power of Akashic and lower astral realm brought down to earth, whereupon he stands at the entrance to the path. He represents divine wisdom as well as worldly wisdom. In Ganesha, the macrocosm and microcosm meet, and the principle of categories declares itself in the words as above, so below, offering the means of analogy and correspondence. The key to the mastery and the synthesis of numerical relations. The key that can unlock the inner aspiration. The key that can unlock the inner sanctuary's door. The devotee who propitiates that somehow each new aspiration contains an Akashic germ of the archetype beginning of life. They intuitively follow the old path, leading back as below, so above, attempting to place themselves in the categorical position of the beginning, at the place where the word came into the being and the mind principle first took visible form. The wise devotee realizes that Ganesha has a genius for unwavering complicated situations and rendering them simple. When this occurs in an individual's life, it may be followed by the difficulties which are the result of the unraveling of an accumulated congestion, the mixing of categories, the ill-fitting pieces people try to jam together when motivated by the personal desire, leads to the enormous obstacles that repeatedly block the way. They are dark skeins of the tangle likes, dislikes, hopes, fears, and aspirations. Originally, based upon misperceptions, they clog the path of the vision with their seeing reality until the ability to function on the level of abstract principle is badly impaired. The Ganapati within ever points the way out of this thought, that higher faculty which eternally tends towards synthesis and simplicity. The elegance of this economy is wonderfully captured in the epithet describing him as he who performs the maximum work with the minimum labor. Ganesha demonstrated this eloquently when Mahadeva, that is Shiva, wished to perform a great sacrifice and invite all 33 crores of gods as witnesses. The active Kartikeya was sent out on the long and tedious errand of the invitation, but could not possibly finish the task in the time allotted. Ganesha, he remained behind and thinking about the problem for a time. He gathered himself up to complete the job. He approached his father Shiva and went around him 3 times before prostrating at his feet. Then invoking all 33 crores of gods in Shiva's name, he gave them the invitation to the sacrifice.
So here we finish up the first part of the speech. Thank you. Hello. 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 Thank you so much, Rao sir. और I'm just trying. Hello. हेलो Hello. अर्चना जी, आवाज आ रहा है मेरा? मेरा आवाज आ रहा है आपको? आप म्यूट हैं अर्चना जी। आवाज आ रही है? आप हाँ, आ रही है। ओके जी। मंजुषा जी, आपका स्वागत है। एक मिनट दीजिए मुझे। मंजुषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शॉर्ट समय में मराठी अनुवाद के लिए आप तैयार हो गए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मंजुषा जी एमकॉम है, एमबीए है, पीएचडी है, मेंबर ऑफ श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज अमरावती है और 2002 से वे जुड़ी हुई हैं। वे एक लेक्चरर के रूप में शिवाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अमरावती में कार्यरत हैं। साथ ही वो सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं, क्योंकि उनके जो वो डॉटर इन लॉ हैं मधुकर वानखेड़े जी की, जो कि बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर थियोसॉफी के हैं। मंजुषा जी काफी सक्रिय हैं, बार बार त्रिवेणी पर भी आती रहती हैं, बहुत अच्छी लगता है। आइए अपना मराठी में आज का विषय पार्ट 1 कहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का टॉपिक है, आजचा जो टॉपिक आहे तो आहे गणेश बुद्धीची देवता। हिंदू परंपरेत असे म्हटले जाते की शिवाची पत्नी आणि गणेशाची आई पार्वतीने ओम हा उच्चार पाहिला, तिच्या शक्तिशाली नजरेने पवित्र शब्दाला जोडलेल्या हत्तीमध्ये रूपांतरित केले, ज्याने गणेशाला जन्म दिला आणि नंतर ओमचे रूप पुन्हा सुरू केले। भगवान गणेशाचे मोठे हत्तीचे डोक शहाणपणा, समंजसपणा आणि विवेक बुद्धी यांचे प्रतीक आहे, जी जीवनात परिपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी असणे आवश्यक आहे। रुंद तोंड जगातील जीवनाचा आनंद घेण्याची नैसर्गिक मानवी इच्छा दर्शवते। ऋग्वेदाची सुरुवात भगवान गणेशाच्या आवाहनाने होते, ज्याचे वर्णन गणांचे प्रमुख आणि सर्वोच्च द्रष्टा म्हणून केले जाते। वरवर पाहता यजुर्वेदातही तुम्हाला गण आणि गणांच्या देवाला नमस्कार असा उल्लेख आहे। गणेश हा शिवाचा पुत्र आणि प्रतिनिधी आहे। भगवान शिव द्वैतवादी मनाच्या मर्यादेपलीकडे असलेल्या अमर्याद चेतनेचे प्रतिनिधित्व करतात। गणेश हे केवळ मॅक्रोकॉझम मधील देवता नाही, तर ते मानवी शरीरातील बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहे। सृष्टीमध्ये गणेश महानतेचे प्रतिनिधित्व करतो, प्रकृतीचे सर्वोच्च स्वरूप। बुद्धिमत्ता जी आपल्या तर्कशक्तीसाठी आणि विवेक बुद्धीला जबाबदार आहे, त्याला आधुनिक भाषेत उच्च मन म्हटले जाते। गणेश बौद्ध धर्मात देखील प्रकट होतो। केवळ बौद्ध देव विनायकाच्या रूपातच नाही, तर त्याला विनायक नावाच्या हिंदू देवतेच्या रूपात देखील चित्रित केले गेले आहे। त्याची प्रतिमा गुप्त काळातील बौद्ध धर्मग्रंथावर आढळू शकते। गणेश हा अशा प्रकारे अडथळे दूर करणारा आहे, बौद्ध आणि जैन धर्माचे भक्त देखील त्यांच्या निवडलेल्या देवतांच्या आमंत्रणासाठी त्यांची मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रथम गणेशाची प्रार्थना करतात। तो कॉस्मिक इंटेलिजन्सचा पैलू आहे, जो दैवी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या प्रबोधन आणि वाढीस मदत करतो। तो वरवर पाहता दुष्टांनाही मदत करतो, पण शेवटी त्यांच्या अयोग्य उपक्रमांना अटकाव करतो। या अर्थाने गणेशाला विघ्नेश्वर, अडथळ्यांचा देव म्हटले जाते। तो अडथळे निर्माण करण्यास तसेच अडथळे दूर करण्यास सक्षम आहे। काही वेळा भक्तांकडून जे मागितले जाते ते मंजूर होत नाही, त्यामुळे आलेली निराशा मार्मिक आहे यात शंका नाही। परंतु योग्य वेळी हे लक्षात येते की दिसणारा अडथळा
हा वेशात वरदान आहे. विघ्नेश्वर जगाचे व्यवहार अशा प्रकारे चालवतात की जीवनातील मोठ्या वाईट गोष्टी कमी वाईटाच्या हस्तक्षेपाने दूर होतात. सर्व नवीन उपक्रमांमध्ये विघ्नेश्वराची औपचारिक मंजुरी आणि पाठिंबा मागितला जातो. बुद्धीच्या भगवंताकडे दुर्लक्ष करून जे काही हाती घेतले जाते त्याला अडथळे येतात आणि म्हणून भक्त त्याच्या प्रतिमेला प्रदक्षिणा घालतात किंवा डोक्यावर 3दा प्रहार करणे, डावा कान उजव्या हाताने, उजवा कान डाव्या हाताने धरून बसणे अशा कृती करतात किंवा आज्ञाधारकतेचे चिन्ह म्हणून उभे राहतात. आज्ञाधारकतेचे चिन्ह म्हणून उभे राहतात. लहान मुलांमध्ये असे पवित्रीकरण कल्पनाशक्ती जागृत करते आणि दृश्यमान मानव आणि अदृश्य अतिमानव यांच्यात एक जिवंत संपर्क निर्माण करते. त्यामुळे लहान मुलांमध्ये भक्ती निर्माण होते. हे प्रत्येक मुलाच्या त्याच्या सोबत्यांसोबत निरोगी आणि प्रेमळ नातेसंबंधाच्या आग्रहाला व्यावहारिक स्वरूप देते. देवतेला अर्पण केलेले खाद्यपदार्थ देणे आणि त्यांचे आपापसात वाटणी करणे यासारखी कृत्ये अंगभूत स्वार्थापोटी अडथळा दूर करण्याचे साधन बनतात. आत्मज्ञानी मनुष्य तीव्र मानसिक आव्हानाद्वारे गणेशाचे आवाहन करतो. त्याच्या अंतर्मनातील प्रार्थनेत त्याने केलेले उपक्रम वैश्विक सुसंवाद आणि दैवी इच्छेची सुसंगत असावा आणि जर ते त्याच्या विरुद्ध असेल तर त्याला पात्र नशिबाची ही भेट होऊ शकेल अशी तीव्र इच्छा असते. अशा खऱ्या भक्ताला गणेशातून प्रवाहित होणाऱ्या शक्तिशाली शक्तीची खोलवर जाणीव असते आणि हे ओळखते की यश आणि अपयश सारखेच मार्गावर आपले पाय अधिक दृढपणे आणि चोखपणे कसे ठेवावयाचे हे तो उत्तरोत्तर शिकू शकतो. हत्तीचे डोके असलेल्या देवाच्या प्रतिकात्मक गुणधर्माबद्दलही तो मनापासून कौतुक करतो. त्याच्या लक्षात आले की गणेशाची सोंड त्याच्या एकाच दाढीभोवती पवित्र शब्दाच्या रूपात वळलेली आहे, जणू काही उरलेल्या दाढीच्या आवश्यक सामर्थ्याचे रक्षण करण्यासाठी. याचे प्रतिकात्मक महत्व योग पद्धतीमध्ये सूचित केले आहे, ज्यामध्ये मूलाधार नश्वर शरीराचे मूळ केंद्र हत्ती किंवा गणेश तसेच मणक्याच्या तळाशी आणि निर्मूलन केंद्राशी संबंधित आहे. अशा प्रकारे गणेश चक्र केंद्रामधून तीर्थयात्रेच्या प्रारंभी उभा असतो आणि सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी त्यालाच प्रशंसनीय केले पाहिजे. सिक्रेट डॉक्ट्रिन गुप्त शिकवणमध्ये गंधाच्या प्राथमिक अर्थाच्या संबंधात पृथ्वीबद्दल बोलले जाते. इतर इंद्रियांचा संबंध पाणी, अग्नी, वायू आणि इतर यांच्याशी आहे आणि वासाच्या अर्थाने ते मिसळले गेलेले आहे. उत्क्रांत होण्याच्या मालिकेतील शेवटचे आहे आणि कामवासनेशी देखील संबंधित आहे. गणेश अशा सर्व वैशिष्ट्यांचे प्रतीक असल्याने पृथ्वीवर आणलेल्या आकाश आणि निम्न सूक्ष्म क्षेत्राच्या शक्तींना मूर्त रूप देतो आणि त्यानंतर तो मार्गाच्या प्रवेशद्वारावर उभा असतो. तो दैवी बुद्धीचे तसेच सांसारिक ज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करतो. गणेशामध्ये स्थूल आणि सूक्ष्म जगाची भेट होते आणि वर्गाचे तत्व स्वतःला वरील प्रमाणे जो भक्त प्रत्येक नवीन उपक्रमात गणपतीचे औक्षण करतो तो साधर्म्य आणि याच्या नियमावर विश्वास ठेवतो आणि प्रत्येक नवीन आकांक्षेमध्ये जीवनाच्या प्राचीन सुरुवातीचा आकाशी जंतू असतो असा विश्वास असतो. ते अंतर्ज्ञानाने जुन्या मार्गाचे अनुसरण करतात, जसे की खाली तसेच वर. स्वतःला सुरुवातीच्या स्पष्ट स्थानावर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, जिथे शब्द अस्तित्वात आला आणि मन तत्वाने प्रथम दृश्य रूप घेतले. सुज्ञ भक्ताला हे लक्षात येते की गणेशामध्ये गुंतागुंतीची परिस्थिती सोडवण्याची आणि सोप्या पद्धतीने मांडण्याची प्रतिभा आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात हे घडते तेव्हा त्याच्या पाठोपाठ अडचणी येऊ शकतात, ज्या संचित गर्दीचा उलगडा झाल्यामुळे उद्भवतात. श्रेण्यांचे मिश्रण वैयक्तिक इच्छेने प्रेरित होऊन लोक एकत्र जमवण्याचा प्रयत्न करतात. नसलेले तुकडे
यामुळे मार्गात वारंवार अडथळा निर्माण करतात. प्रचंड अडथळे निर्माण होतात. ते गुंतागुंतीच्या आवडी, नापसंती, आशा, भीती आणि आकांक्षा यांचे गडद कातडे आहेत. मूलतः चुकीच्या समजांवर आधारित ते अमूर्त तत्वांच्या पातळीवर कार्य करण्याची क्षमता खराब होईपर्यंत त्यांच्या दिसणाऱ्या वास्तवासह दृष्टीचा मार्ग रोखतात. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची अभिजातता विस्मयकारकपणे त्यांच्या वर्णनात जो कमीत कमी श्रमात जास्तीत जास्त काम करतो असे वर्णन करतो. महादेवाने एक महान यज्ञ करण्याची आणि सर्व 33 कोटी देवतांना साक्ष म्हणून आमंत्रित करण्याची इच्छा केली तेव्हा गणेशाने हे स्पष्ट दाखवले. सक्रिय कार्तिकेयला आमंत्रणाच्या दीर्घ आणि कंटाळवाण्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते, परंतु ते निर्धारित वेळेत कार्य पूर्ण करू शकले नाहीत. गणेश मागे राहिले आणि काही काळ समस्येचा विचार करत काम पूर्ण करण्यासाठी स्वतःला एकत्र केले. तो वडिलांकडे गेला आणि त्यांच्या पायाला साष्टांग नमस्कार करण्यापूर्वी 3 वेळा त्यांचे भोवती फिरला. मग सर्व 33 कोटी देवांना शिवाच्या नावाने आमंत्रण देऊन त्यांना यज्ञाचे आमंत्रण दिले. सर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. जी जी, बहुत बढ़िया, आपने भी Thank you, एकदम sir. खत्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। हालांकि इनका संक्षिप्त परिचय देना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी मैं इनका एक परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये हमेशा एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं। कभी भी मैंने इन्हें ऐसा नहीं देखा है कि ये एक्टिव ना हो, तो हमेशा ही एक्टिव रहने वाले हर्षवर्धन भाई भी हैं इंग्लिश और हिंदी में, और उन्होंने एमए किया है इंग्लिश से, बीएड इंग्लिश और ज्योग्राफी में किया है। उसके साथ ही वो अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं, वो भी गांव के इलाकों में 7 वर्ष तक, और फिर 32 वर्ष तक विद्यानगर हाई स्कूल जो अहमदाबाद में है उसके वहाँ उन्होंने काम भी किया, और प्रिंसिपल की तरह वहाँ 2011 में रिटायर हुए। वे कोऑर्डिनेटर भी रहे गुजरात एसएससी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के, और इंग्लिश पेपर्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन्होंने 10 साल तक सेटिंग की। कोऑर्डिनेटर रहे एसएससी एग्जाम्स असेसमेंट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। जैसा मैंने कहा कि वो ये तो एक्टिविटी करते ही रहे, लेकिन साथ में थियोसॉफी की एक्टिविटी भी उन्होंने 1972 इतने पुराने समय में ज्वाइन की। सेक्रेटरी रहे 76 से 80 तक। 86 में वो रोहित लॉज में आए, फिर प्रेसिडेंट रहे रोहित लॉज के, और 1-2 वर्ष नहीं 25 वर्ष तक। और उसके बाद उन्होंने अपना कुछ और अलग कार्य भी जारी रखा। 86 से 2005 तक पूरी तरह से कार्यरत रहे, और इस वक्त वो गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले भी वो 2009 और 2011 तक वे इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड और हमारे एकदम वयोवृद्ध जानकार हर्षवर्धन भाई आज हमें गणेशा के ऊपर हिंदी में बताएं। थैंक यू। आइए हाँ, सर। नमस्कार, सबको नमस्कार और गणेश चतुर्थी की आज के दिन शुभकामनाएं। गणेश जी की स्तुति के साथ मैं शुरू कर रहा हूं, और खास करके हमारे नंदकुमार जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कम समय में तरल जी मेरे सामने आए और बोला कि ये करना है, तो ये तो गणेश जी कराते हैं, हम कहाँ करने वाले हैं। सही बात है। उनकी स्तुति के साथ ये प्रज्ञानेश्वर गणेश, भारतीय हिंदू पुराण अनुसार जो कहा जाता है कि शिव पत्नी एवं गणपति माता पार्वती जी ने ओम शब्द को देखा, तो उस पवित्रतम शब्दांश को अपने शक्तिशाली प्रकाश पुंज से द्विहस्ती में बदल दिया, जिसके कारण ही गणेश जी की उत्पत्ति हुई और ओम का प्रादुर्भाव हुआ। गणेश देव का बड़ा मस्तक प्रज्ञा का प्रतीक है, समझदारी और विवेक बुद्धि का द्योतक है, जिसके कारण मनुष्य को जिंदगी में पूर्णत्व की प्राप्ति करनी ही है। चौड़ा खुला मुख इस बात का द्योतक है कि मनुष्य को इस दुनिया में स्वाभाविक तौर से जिंदगी के आनंद को पाने की स्वाभाविक इच्छा है। गणाधिपति गणेश जी की स्तुति से ऋग्वेद की शुरुआत होती है। यजुर्वेद में गणेश जी की प्रभावना की गई है, और
उनके सामने सभी नतमस्तक है। शिव जी के पुत्र गणेश भगवान शिव को ही प्रस्तुत करते हैं और द्वंद्व मन से परे चेतन को चरितार्थ करते हैं। गणेश जी सिर्फ वैश्विक देव नहीं है, वे मनुष्य के बुद्धि तत्व को दर्शाते हैं। सृजन की प्रक्रिया में वे महत तत्व है जो प्रकृति का सबसे उच्चतम स्वरूप है। उच्च मन के आयाम स्वरूप बुद्धि तत्व विवेक को अभिव्यक्त करता है, जो कि आधुनिक समझ में भी है। बुद्ध संप्रदाय में भी गणेश जी का महत्व है। गॉड विनायक के स्वरूप में है और हिंदू देव स्वरूप में भी विनायक कहे जाते हैं। गुप्त वंश के समय में उनकी मूर्तियां धर्म ग्रंथों में देखी जा सकती हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता है। बुद्ध और जैन संप्रदाय में भी उनकी पूजा प्रथम होती है, उनसे अनुमति मांगी जाती है, बाद में अन्य देवों का स्तुतिगान होता है। तो वैश्विक प्रज्ञा के भी वे संपुट है, इसलिए दिव्य तत्व की जागृत के लिए गुणी जन उनकी पूजा करते हैं। दृष्टा लोग भी उनकी मदद चाहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें ही जवाबदेही बनाया जाता है। और जो दुष्ट लोग हैं उनको भी उस तरह से मदद भी मिलती है कभी कभी। तो इसलिए गणेश जी को विघ्नेश्वर भी कहते हैं, विघ्नों के देव। यह वो देव हैं जो विघ्नों को रचते भी हैं और उनको हरते भी हैं। दोनों ही परिस्थिति में गणेश जी हमें लाभान्वित ही करते हैं। कभी कभी भक्त जो भी इच्छा रखता है वह सुनी नहीं जाती, जिसके कारण जो भी निराशा उत्पन्न होती है वह निसंदेह ही बड़ी मार्मिक होती है। कुछ समयावधि में ही पता चल जाता है कि जो भी बाधाएं या विघ्न हैं वे अदृश्य आशीर्वाद। विघ्नेश्वर दुनिया के तौर तरीकों को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि जो बड़ी बाधाएं या बड़े राक्षसी तत्व होते हैं वे छोटी छोटी बाधाएं या कम परेशानी वाले तत्वों से दूर हो जाते हैं। जब भी नया कार्य संपन्न करने जाते हैं तब विघ्नेश्वर की सहाय मांगते हैं। अगर प्रज्ञान देव की अवहेलना हो जाए तो भक्त लोग उनकी मूर्ति की प्रदक्षिणा करते हैं, या तो दाहिने हाथ से बाएं कान को पकड़कर और बाएं हाथ से दाहिने कान को पकड़कर उनकी मूर्ति के आगे बैठकर या खड़े रहकर उनकी शरण स्वीकार करते हैं। छोटे बच्चों में इस प्रकार गणेश जी के प्रति भक्ति भाव हम प्रेरित करते हैं। उनके साथ जैसे कि एक संबंध प्रस्थापित होता है जो कि क्षर और अक्षर का होता है, व्यक्ति और समष्टि का होता है। गणेश जी के साथ बच्चों में ऐसा व्यवहार प्रस्थापित होता है कि वे निस्वार्थ भाव से जो भी खाद्य पदार्थ या प्रसाद होता है उसे देव को अर्पण करने के बाद अपने लोगों में उन खाद्य चीजों को बांटने का और उनको खिलाने का आनंद प्राप्त करते हैं। इस तरह निस्वार्थ होने से जो भी बाधाएं हैं वे प्रकट स्वरूप से दूर हो जाती है। अब जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति होता है वह गणेश की आराधना अंतरतम मन से करता है। वह इस तरह से प्रार्थना करता है कि उसका अंतरतम तत्व वैश्विक सायुज्य से और दैवी इच्छा के अनुरूप क्रियान्वित होता रहता है। अगर कुछ विपरीत हो तो भी उसे स्वीकृत करने योग्य बनता है। अपने नसीब या तकदीर में जो होनी है उसकी स्वीकृति करता है। ऐसा सच्चा भक्त गणेश जी की उपासना में जो भी ऊर्जा या शक्ति वहन होती है उसकी ताकत को पहचानने लगता है। उसे पता चल जाता है कि जो भी सफलता या निष्फलता, कामयाबी या नाकामयाबी है वे सभी समान ही है। वह अपने आप को प्रगति के पथ पर बड़े ही धैर्य और हिम्मत के साथ कदम रखने योग्य बना हुआ महसूस करता है। अब हाथी के मस्तक वाले जो देव हमारे गणपति है उनके सांकेतिक गुणों को बड़े ही चाव से पसंद किया जाता है। उसे पता चलता है कि गणेश की सूंड एक दंत को लपेटे हुए है। सूंड की सूंघने की ताकत श्रेष्ठता को पहचानने का अनुभव का मार्ग है। सांकेतिक स्वरूप से यह योग पद्धति का प्रतीक भी है जिसमें पार्थिव शरीर के मूलाधार को जाना जाता है। यह हमारी पार्थिव जगत में जो यात्रा है उसका केंद्र है।
और जो भी अंतराय होते हैं उनको वे दूर करते हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी पृथ्वी का संबंध घ्राणेन्द्रिय के साथ बताया गया है। अन्य इंद्रियां पानी, अग्नि, वायु एवं ईथर के साथ जुड़ी हुई है। वे सभी घ्राण में ही सम्मिलित है, जो उत्क्रांति की अंतिम श्रेणी में रखकर अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप में स्मृति और मनस के साथ जुड़ती है और काम वासना की भी वे द्योतक है। गणेश जी इन सभी का तात्विक स्वरूप पेश करते हैं, जो आकाशिक तत्व की ताकत और निम्न सूक्ष्म शरीर के पार्थिव जगत में अवतरित होने का मार्ग सांकेतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। गणेश जी दिव्य ज्ञान एवं दुनियावी ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। दोनों के बीच अंतःकरण स्वरूप है, जो नित्य जीवन का भी आधार है। अब देखें, ऐहिक एवं दैहिक यानी दोनों, उसमें गणेश जी है। इसीलिए जो भी ऊपर है वही निम्न स्तर में है, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का ज्ञान भी देते हैं। हमारे भीतरी ज्ञान रूपी द्वारों को खोलने की जो चाबी है, उसे भक्त लोग पाना चाहते हैं। उसे पाकर ही जो रिद्धि और सिद्धि है उनका जतन करते हैं। जहां गणेश जी का स्वरूप बनना शुरू होता है, बनकर तैयार होता है और फिर उसका विसर्जन होता है। गणेश जी बाधा स्वरूप तत्वों को मिटाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो भी तकलीफें बढ़ती है, जो भी मानसिक स्तर की जिद्दोजहद रहती है, मानसिक ताप रहते हैं, जो भी व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण ही अनुभूत है और जो हमारा रास्ता रोके हुए हैं, जिनमें कई तरह के द्वंद्व क्रियान्वित रहते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं, तब गणेश जी का हमारे उच्च मनस्तत्व को प्रभावी करने का जो आयाम हमें सादगीपूर्ण स्वरूप में ले आता है, तब हम नाद कर उठते हैं कि अति मेहनती कार्य अल्प मेहनत से संपन्न हो गया। इसीलिए ही वर्णन में पाते हैं कि महादेव जी ने सभी 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित किया था, उन्हें गणेश जी ने अल्प शक्ति से संपन्न किया है। कार्तिकेय जी को बहुत ही बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अभियान में वो जुड़ गए, जो काफी लंबा और काफी अरसे का कष्टदायी अभियान था। तभी गणपति जी ने उसी कार्य को पिता शिव जी के 3 बार प्रदक्षिणा करते ही संपन्न कर लिया था। इति अस्तु इति शिवम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नंद कुमार राउत जी, आप आमंत्रित हैं अपना भाग 2 कहने के लिए, तो आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, सर अनम्यूट कर लीजिए। Now we see the second part of this speech. Gods and sages seek their temporal ends through the wily agency of Ganesha, called Vigneshwara, the overcomer of obstacles. He is invoked before all religious ceremonies except funerals, as well as before any new undertaking, and prayers to the other gods or goddesses in the Hindu tradition, Hindu pantheon. They are often preceded by his worship. Honorary salutations to him are printed at the beginning of various texts, in the belief that if he is disrespected, he will become irascible and thwart men's aspiration. It is said that even Surya petitions Ganesha to remove any obstacle that may come in the way of his daily circling of the globe by casting his first rays in the morning upon the elephant-headed god's image.
Several of the Puranas place him above even the sacred word, sacred Trimurti, a lofty designation affirmed in the character ascribed to the Sveta Vinayaka, deity at the Tiruvalunjali temple near Kumbakonam, where it is thought that only after having worshipped Ganesha can the god successfully churn the ocean of milk. Similarly, the Vinayaka in the same district is believed to have offered King Rama protection from the ghost of Rakshasa when he came there after the Holocaust of at Lanka. Through the worship of Ganesha's brother Kartikeya flourished in North India from the 6th century. It is eventually eclipsed by that focus upon Ganesha. In the south, he appeared frequently in the architecture of the Pallavas. In Maharashtra and Gujarat, his importance grew, culminating in a major religious cult that profoundly affected the culture of the area. One of its most important ritual observations is illustrated in a story depicting Ganapati's inordinate love for rice sweet, that is Modaka. Ganesha inspires more devotion and affection in the worshippers than fear. For the deeper success, the way may not be so simple. May not the bent branches of Ganesha's swastika emblem suggest that one may not reach the central unity directly through the outer forms of the world. Hence, the old saying that the way is crooked, the swastika symbolizing the development of multiplicity from basic unity, is rightly an attribute of God, who is involved in the realm of particulars, but whose nature continually reduces them to essentials. In one of his four hands, he holds a goad with which he continually propels events. Ganesha's limbs, though human, they are enlarged to enable the mind of man to partake in some of the immense wisdom of the elephant, and his ears resembling winnowing fans denote the power to sift out the dust of vice from the virtues in the words addressed to him, leaving only the real values to be apprehended. The path to unity may be crooked, but all paths are contained in his huge belly, which accommodates the innumerable beings in space, and his great elephant head symbolizes the macrocosm rightly seated atop the manifest body of man, the microcosm. Man is microcosm. In the Theosophical glossary, Ganesha is like to Thoth Hermes, the revealer of the mysteries, a similarity which has been unconsciously stressed by devotees
who have identified Ganesha as the Lord of Buddhi. As such, it is natural that he should have Buddhi and Siddhi, his Shakti and his Shakti of success as consorts, and be closely identified with intelligence and literary undertakings. The significance of possessing an elephant head lies in its macrocosmic symbolism. The elephant is identified with wisdom, eternity, and compassion. Its great power of smell relates it firmly to the earth, but its size, longevity, nobility, and intelligence clearly establish its place in heavenly lore, where long memory transcends the barriers of time and space. Ganesha acquired his remarkable head in the battle which ended when he forbade Lord Shiva's entrance into Parvati's room. Ganesha not only destroyed stumbling blocks, he also creates them and places them like an unyielding doorkeeper squarely in the path of the seekers. Thus, he is not only the protector of the mysteries, but also the key which can open the door. This would seem to indicate that the way back to unity is not only crooked like the swastika, but also subtle, requiring wonderful abilities capable of repeatedly transcending paradox. Ganesha's image, like the swastika, is found often crossroads, requiring enlightened powers of choice to determine the correct path. He is thus the path and the pathfinder. He indicates the way, but not easily, for he is as complicated as are those who approach him. A Gana is also a Bhuta, a Rakshasa, a Yaksha, that which is deformed, deviating, and abnormal. There are two aspects to being. One is straight, stable, unchanging. The other is unstable, tortuous, fleeting, and inconstant. The latter distorts and nullifies the vertical axis of life. It is conceived as vigna, a word which describes all obstacles, hurdles, interruptions, impediments, and troubles. The inevitable distorted shadows and appearances that golump along behind creation and assume deformed shapes in the scheme of things. These are the reflections and inversions of the original truth, which vibrates as the primary impulse of the intelligence in manifestation. Thus, it can be said that when the primeval principle of mind filled the whole space, it did so by assuming the qualities of the Gana, whose capering is out of step with the axial rhythm of Shiva's dance, because it is at variance with the normal balance of the whole. The greatness of this Gana, which is after all the whole manifested cosmos, presented an enormous problem. Today, we have seen how the Lord Ganesha is the god of wisdom,
So wish you all the best, all good wishes for everybody who participate in this lecture. Happy Ganesh Chaturthi. Thank you. थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। और मंजूषा जी प्लीज अपना मराठी में पार्ट 2 हमारे सामने पेश करिए। धन्यवाद जी सर। गणेश बुद्धीची देवता याचा दुसरा पार्ट आपण आता सुरू करत आहोत। देव आणि ऋषी देखील गणेशाच्या धूर्त एजन्सीद्वारे त्यांचे लौकिक अंत शोधतात। अडथळ्यांवर मात करणारा विघ्नेश्वर म्हटला जातो त्याला सर्व धार्मिक समारंभापूर्वी तसेच कोणत्याही नवीन उपक्रमापूर्वी बोलावले जाते आणि हिंदू मंदिरातील इतर देवी देवतांना नंतर प्रार्थना केली जाते। त्यांना मानाचे अभिवादन विविध ग्रंथांच्या सुरुवातीला छापलेले आहे। असे म्हटले जाते की सूर्य सकाळी हत्तीच्या डोक्यावर असलेल्या देवाच्या प्रतिमेवर सकाळी आपली पहिली किरण टाकून पृथ्वीच्या दैनंदिन परिभ्रमणाच्या मार्गात येणारे कोणतेही अडथळे दूर करण्यासाठी गणेशाला विनंती करतो। त्रिमूर्ती कुंभकोणम जवळील तिरुवल्लंजुली मंदिरातील श्वेत विनायक देवतेच्या वर्णात पुष्टी केलेली एक उच्च पदनाम आहे, जिथे असे मानले जाते की गणेशाची पूजा केल्यावरच देवता यशस्वीपणे दुधाच्या महासागराचे मंथन करू शकतात। त्याचप्रमाणे याच जिल्ह्यातील विनायकाने लंकेतील नरसंहारानंतर राजा रामाला राक्षसांच्या भूतापासून संरक्षण दिले होते। उत्तर भारतात गणेशाचा भाऊ कार्तिकेय याची उपासना ख्रिस्तपूर्व 6व्या शतकापासून भरभराटीस आली, तरी शेवटी गणेशावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे त्याचे ग्रहण झाले। दक्षिणेला तो पल्लवांच्या वास्तुकलेत वारंवार दिसला आणि नंतर तो शैव मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर मध्यवर्ती जागा व्यापण्यासाठी आला। महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये त्याचे महत्त्व वाढले आणि एका प्रमुख धार्मिक पंथाचा पराकाष्ठा झाला, ज्याने त्या भागातील संस्कृतीवर खोलवर परिणाम केला। गणेश उपासकांमध्ये भीतीपेक्षा अधिक भक्ती आणि आपुलकीची प्रेरणा देतो। सखोल यशासाठी मार्ग इतका सोपा असू शकत नाही। गणेशाच्या स्वस्तिक चिन्हाच्या वाकलेल्या फांद्या असे सूचित करतात की एखाद्या व्यक्तीने जगाच्या बाह्य रूपांमधून थेट मध्यभागी पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे मार्ग वाकडा अशी जुनी म्हण आहे। म्हणजेच कुठलंही यश हे इझिली आपल्याला भेटू शकत नाही। स्वस्तिक योग्यरित्या देवाचे एक गुणधर्म आहे। त्याच्या 4 हातांपैकी एका हाताने त्याने एक घोडा धरला आहे, ज्याने तो सतत घटनांना चालना देतो। गणेशाचे हातपाय मानवी असले तरी मानवाचे मन हत्तीच्या काही अफाट शहाणपणात भाग घेण्यास सक्षम होण्यासाठी मोठे केलेले आहे आणि त्याचे कान जे जिंकणाऱ्या चाहत्यांसमोर आहेत। एकतेचा मार्ग वाकडा असू शकतो, परंतु सर्व मार्ग त्याच्या विशाल पोटात सामील आहेत, जे अंतराळातील असंख्य प्राण्यांना सामावून घेतात आणि त्याचे महान हत्तीचे डोके मनुष्याच्या प्रकट शरीरावर सूक्ष्म जगाच्या शीर्षस्थानी बसलेल्या मॅक्रोकॉझमचे प्रतीक आहे। थिओसॉफिकल शब्दकोशात गणेशाची तुलना रहस्य प्रकट करणाऱ्या थॉट हमिसशी केली जाते। ही एक समानता आहे जी गणेशाला बुद्धीचा देव म्हणून ओळखणाऱ्या भक्तांनी नकळतपणे ताणली आहे। त्यामुळे त्याला बुद्धी आणि सिद्धी म्हणजेच यशाची शक्ती, जोडीदार असणे आणि बुद्धिमत्ता आणि साहित्यिक उपक्रमांती जवळून ओळखणे स्वाभाविक आहे। हत्तीचे डोके धारण करण्याचे महत्त्व त्याच्या मॅक्रोकॉस्मिक प्रतीकात्मकतेमध्ये आहे। हत्तीची ओळख शहाणपण, शाश्वतता आणि करुणेने केली जाते।
त्याची गंधाची महान शक्ती पृथ्वीशी घट्टपणे संबंधित आहे, परंतु त्याचा आकार, दीर्घायुष्य, कुलीनता आणि बुद्धिमत्ता स्पष्टपणे त्याचे स्थान स्वर्गीय विद्यांमध्ये स्थापित करते, जिथे दीर्घ स्मृती वेळ आणि जागेच्या अडथळ्यांना पार करते. भगवान शिवाला पार्वतीच्या खोलीत प्रवेश करण्यात मनाई केल्यावर झालेल्या युद्धात गणेशाने त्याचे उल्लेखनीय मस्तक मिळवले. अशा आक्रोशामुळे संतप्त झालेल्या शिवाने त्या मुलावर आपले गण सोडले. तो कोण आहे असा संशय येत नाही. गणेश केवळ रहस्यांचाच रक्षकच नाही, तर दरवाजा उघडू शकणारी चावी देखील आहे. यावरून असे दिसते की एकात्मतेकडे परत जाण्याचा मार्ग स्वस्तिक प्रमाणे वाकडाच नाही, तर सूक्ष्म देखील आहे, ज्यात वारंवार विरोधाभास ओलांडण्याची क्षमता असलेल्या अद्भुत क्षमतांची आवश्यकता आहे. गणेशाची प्रतिमा जसे स्वस्तिक अनेकदा क्रॉसरोडवर आढळते, योग्य मार्ग निश्चित करण्यासाठी निवडीच्या ज्ञानी शक्तींची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे गणेश मार्ग आणि पथदर्शक पण आहे. तो मार्ग सूचित करतो, परंतु सहज नाही, कारण तो त्याच्याकडे जाणाऱ्यांनी इतका गुंतागुंतीचा आणि अस्पष्ट आहे. गण म्हणजे भूत, राक्षस, यक्ष, जे विकृत, विचलित आणि असामान्य आहेत. ते असण्याचे दोन पैलू आहेत, एक सरळ, स्थिर आणि अपरिवर्तित, तर दुसरा अस्थिर, त्रासदायक आणि क्षणभंगूर आणि अचल आहे. नंतरचे जीवनाच्या उभ्या अक्षांना विकृत आणि शून्य करते. ते विघ्न म्हणून कल्पित आहे, एक शब्द जो सर्व अडथळे आणि त्रास यांचे वर्णन करतो. अपरिहार्य विकृत छाया आणि देखावे जे सृष्टीच्या पाठीमागे गुंततात आणि गोष्टींच्या योजनेत विकृत आकार धारण करतात, हे मूळ सत्याचे प्रतिबिंब आणि उलटे आहेत. ते प्रकटीकरणात बुद्धिमत्तेचे प्राथमिक आवेग म्हणून कंपन करतात. अशा प्रकारे असे म्हणता येईल की जेव्हा मनाच्या आदिम तत्वाने संपूर्ण जागा व्यापली होती, तेव्हा त्याने गणाचे गुण गृहीत धरून असे केले होते. त्याची कॅपरिंग शिवाच्या नृत्याच्या अक्षीय लयेसह पायरी बाहेर आहे, कारण ते सामान्यांशी भिन्न आहे. संपूर्ण संतुलन या गणाचे महात्म्य, जे सर्व केल्यानंतर संपूर्ण प्रकट ब्रह्मांड आहे, हे दाखवते. सर, यहाँ तक अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और हर्षवर्धन भाई, आप अपना हिंदी में फिर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो या कुछ और ऐड करना चाहते हो तो जरूर ऐड कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मंजूषा जी. यस सर, आप आगे बढ़िए. थैंक यू सेकंड पार्ट के लिए. जी. देवता और संतों गणेश जी की शरण में जाते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नेश्वर कहते हैं, जो नाना प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं. गणेश जी की स्तुति या पूजन हर एक धार्मिक विधि में सबसे पहले की जाती है. सिर्फ अंतिम क्रिया में जो धार्मिक विधि होती है उसमें नहीं की जाती. जो भी हमारे ग्रंथ छपते हैं उनके शुरुआती पन्ने पर उनको अंकित किया जाता है. अरे ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्योदय होते वक्त सूर्य भी अपनी पहली किरण से गणपति के दर्शन करता है. पुराणों के अनुसार गणपति जी को पवित्र त्रिमूर्ति के ऊपर स्थान दिया गया है. श्वेत विनायक स्वरूप भी हमें मंदिरों में एक पहचान स्वरूप मिल जाते हैं, जो कुंभकोणम के नजदीक तिरुवन्नगली मंदिर में स्थित है. कथा भी स्पष्ट है कि गणेश जी की स्तुति के बाद जो भी देवता है वे क्षीर सागर का मंथन सफलतापूर्वक कर सकते हैं. उसी जिले में वेदवर्णियम में लंका विनाश के बाद प्रभु राम वापस आए तो राक्षसों के भूत स्वरूपों से रक्षा प्राप्ति हेतु उन्होंने गणेश जी की पूजा की थी. 6ठी सदी से गणेश जी के भाई कार्तिकेय की पूजा उत्तर भारत में बड़ी ही प्रचलित हुई थी, लेकिन बाद में गणेश जी की पूजा शुरू होने से
उनकी पूजा पृष्ठभूमि में चली गई या तो वो ग्रसित हुई। दक्षिण भारत में पल्लव वंश के मंदिरों की रचनाओं में और चोला वंशीय शिव मंदिरों में उनका बड़ा ही स्थान प्रवेश द्वार के केंद्र में रहता था। महाराष्ट्र और गुजरात में भी उनका अनुष्ठान बढ़ता जा रहा है। सांस्कृतिक विरासतों में और खान पान में भी उनकी स्तुति गान का प्रभाव बढ़ने लगा। एक कहानी में तो गणेश जी का चावल से बने लड्डू प्रेम को भी वर्णित किया गया है, जिसे मोदक कहते हैं। गणेश जी अपने भक्तों में डर की भावना शेष करके भक्ति और प्रेम की भावना को ज्यादा उजागर करते हैं। सफल होने के लिए यह रास्ता सीधा साधा नहीं है। गणेश जी के स्वस्तिक चिन्ह की जो मुड़ी हुई शाखाएं हैं, वे इस बात को दर्शाती है कि बाहरी दिखावा करने से केंद्र में निहित ऐक्य को पाया नहीं जा सकता। इसीलिए पुरानी कहावत है कि द वे इज क्रूकेड, द वे इज क्रूकेड, यानी रास्ते तो टेढ़े मेढ़े ही है। स्वस्तिक का चिन्ह इसी बहुआयामी जटिलतम गुणों से होकर के केंद्र में स्थित ईश्वर से ऐक्य बनाने का प्रमाण है। कुदरती तत्वों का भी इसी दिशा में संक्रमण होता ही रहता है और जो अत्यंत आवश्यक हो उसी को पाया जा सकता है। गणेश जी के चारों हाथों में एक हाथ में उन्होंने अंकुश धारण किया है। वे हमेशा उसे से ही घटनाओं को प्रभावित किया करते हैं, यानी कि उन्हें खदेड़ कर अंकुशित करते हैं। गणेश जी का शरीर मानव स्वरूप होते हुए भी है, जो हाथी में विद्यमान प्रज्ञा का सूचक है। उनके बड़े कान जो हर वक्त पंखुड़ी की तरह वो डोलते रहते हैं, वे दुष्ट तत्वों को हटाते रहते हैं और सिर्फ सद्गुणों को ही स्वीकार करते रहते हैं। ऐक्य को पाना कठिन और टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर भी उसके भक्त पेट में सभी रास्ते समाहित होते हैं। उनका बड़ा मस्तक, हाथीनुमा मस्तक, वैश्विक अस्तित्व को मनुष्य रूप में जो शरीर है उसके ऊपर सही तरीके से स्थापित है। थियोसॉफिकल शब्दावली में गणेश जी को थोथ हर्मिस यानी रहस्यों को उद्घाटित करने वाला कहा जाता है। भक्तों की परिभाषा जिस स्वरूप में हम जानते हैं उन्हें बुद्धि के देव बताते हैं, यानी सामर्थ्य है और स्वाभाविक ही है कि बुद्धि और सिद्धि यानी सफलता की ताकत, वो सफलता की ताकत के देव हैं और हमें वे ज्यादा जवाबदेही बनाते हैं। हाथी स्वरूप को सांकेतिक अर्थ में प्रज्ञा, शाश्वतता एवं करुणा की पहचान मिली है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। हाथी का कद, उसका विशाल स्वरूप, विनम्र स्वभाव और बौद्धिकता का स्वर्गीय गान समय और स्थान के आयाम के बंधनों से मुक्त है। पार्वती जी के कक्ष में भगवान शिव को प्रवेश वर्जित था और हम जानते हैं वो कथा, तो उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप ही गणपति जी को उनका हाथीनुमा मस्तक मिला। मार्ग में आने वाले अनुचित रोड़ों को हटाने के बजाय उनसे मजबूत दीवार बनाने का कार्य उन्हें अजय द्वारपाल बनाते हैं। इस तरह रहस्यों की वे रक्षा करते हैं और साथ साथ उन्हें जानने की चाबी भी बताते हैं। बीच चौराहे पर पाए जाने वाले स्वस्तिक नुमा रास्तों की पसंदगी हमारी बौद्धिक प्रकृति के क्षेत्र के लिए घोषित करती। स्तुति स्वरूप में अब हम देखें तो जो भी हम गान करते हैं, गणपति का जो भी गुणगान करते हैं, जो भी गान करने में हम इस तरह से डूब जाते हैं कि उसमें भूत, राक्षस और यक्ष
कि जो असामान्य बातें हैं उन बातों में दो पहलू उजागर होते हैं। एक है सीधा, स्थिर और अपरिवर्तनीय, और दूसरा है अस्थिर, कष्टदायी और अधूरा। जो भी बातें हमें तकलीफ पहुंचाती है, हमारी प्रगति में बाधक है, वे हमें विकृत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मूल सत्य स्वरूप है, उनका चालन हमें सही रास्ता दिखाता है। और गणेश गान ही हमें हमारी मूल प्रकृति के बंधारण में निहित तत्व को शिव तत्व जो है उससे जुड़ा रखता है। यानी गणेश स्तुति जो है वो स्वयं में ही हमारे लिए हर एक परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करती है। और इस स्थिर भाव के साथ आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर 10 दिन तक चलने वाले उत्सव में अनंत चतुर्दशी की शुभेच्छाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों वक्ताओं ने एकदम करेक्ट टाइम पर सब कुछ खत्म किया। तो अशोक लोखंडे जी हमारे बीच बहुत दिनों बाद में कुछ कहना चाह रहे हैं। और भी कोई कहना चाहता है? शिंदे जी आता जरा आवाज कमी करा। जी भी हैं, कहना चाहती हूँ या कुछ इस विषय में प्लीज कहिए, हमारे पास आज समय भी है। हाँ जी अशोक जी, सर अनम्यूट कर लीजिए। मेरा अनम्यूट है। Hear me? आई कैन हियर यू। बोलिए Something. शिंदे जी। हाँ, जी very बोलिए। nice. Harchan भाषण हो, it is something disturbing. नहीं नहीं कुछ नहीं है सर, हो गया। मुझे दिखाई नहीं देता। अभी दिखाई दे रहा है सर? हाँ, okay, okay. या I am not able to see here. You, now I can see you. या Okay. यस See, I must congratulate all these and along with you and Archana ji. See, in this Ganesh Chaturthi, we are praising the Ganapati. Again, it has gone. sir, but we can clearly see and hear you, sir. You see clearly, but my screen is going on. No Anyway, I must congratulate all these three speakers, even Harshavadan and NANDKUMAR and MANJUSHA, WANKHADE. All of them, they have contributed very nicely. Actually, I want to say something. Yeah. Always Ganesh is praised. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Karume Deva Sarvakaresu Sarvada. That is the stotra. Vakratunda, Mahakaya and Surya Koti Samaprabha. These are the three things very important. Mahakaya, big body, all kind of energy is there. But Vakratunda is also there in the sense he is both bringing the vigna as well as removing the vigna. So Vakratunda Mahakaya, and he got head which is Surya Koti Samaprabha. So something happened. This is a symbolic explanation is given in Narada Purana also. Oh, again it is disturbing me. Okay. Hear you, sir, very loud and clear. Oh, you hear, but if I don't see any screen, if it is everything is black, then I am also becoming black. I don't know why. Anyway, this Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha, this is the Ganapati Stotra. Daily, if we recite, that gives us a wonderful experience. And when we study, as it is mentioned in their talks, that it is the course of evolution. One race is completely removed by the great ones. That is, Atlantic race was sunk in that Atlantis, and the new race came. In the same manner, this Mahakaya is cut and it is given a head of the elephant. So the head is cut. That means
individualization when it happens, during that, these three qualities, they come. That is will, wisdom, and love. And these three qualities are the indication of this elephant head on this Mahakaya. So this is what we can understand as a course of evolution. They have explained in Puranas and all this. And very well we explained all of you. And even one more thing we used to chant, that is the Prathamam Vakratundancha Ekadantam Dvitikam Tritiyam Krishnapingaksham Gajavaktram Chaturthakam Lambodaram Panchamancha Shashmam Vikatamevacha Saptmam Vignahartaganesh Dhumravarnam Tathastakam Navamam Bhalachandrancha Dashmam tu Vinayakam Ekadasham Ganapatim Dwadasham tu Gajananam Iti Sri Narada Purane Sankat Nashanam Sri Narayan Purane, that is what it is, Stotra is there. Here, explanation is given, 12 potential energies are there. This is all Vakratunda, Prathamam Vakratundancha. Like this it is up to the 12. Dwadasham tu Gajananam. So, if you see this, very well studied in Narada Purana, and even it is somewhere I found, it is all in India. Even you see Ashtavinayak. Ashtavinayak we know well. And this Ashtavinayak is concerned with he is Vinayak, but he has his concerts, 8 siddhis, Anima, Mahima, Garima, Laghima, Ishitva and Vashitva, Prapti and Parakaya. These are the Ashtavinayak. These are the male and female combination is there. This is how it is a Mahakaya. And he has to control these siddhis. That is what it is said. And when we say Vakratunda that is Prathamam Vakratundancha Ekadantam Dvitikam, if we see it is said somewhere, and which I have with me, and daily I see, this Prathamam Vakratundancha is in Chennai, especially near Kannur. Vakratunda idol is there. Then Ekadanta idol is there in West Bengal. Then Tritiya Krishnapingaksham is there in Kanyakumari. Gajavaktram Chaturthakam is present in Orissa, Bhubaneswar. Lambodaram Panchamancha is Ganapati Pule, even in MP, Panchamukhi, Omkareshwar near. Then Shashmam Vikatamevacha, it is in Himalaya, Rishikesh. Saptmam Vignahartaganesh, it is in Kurukshetra. And Dhumravarnam Tathastakam is in Kerala, Calicut, even in Tibet, 15 kilometers from Lhasa. Navamam Bhalachandrancha, it is in Dhanushakoti, Rameshwaram. And Dashmam tu Vinayakam, it is in Varanasi, Kashi, Annapurna, where Dundiraj Ganesh is there. Then Ekadasam Ganapatim means Gokarna, Divbhuja Mahaganapati. And Dwadasham tu Gajananam, headless Mundakata Ganesh. It is in Gaurikunda, Himachal Pradesh. So these are the, right from top of Himalaya to south in Chennai. That is how it is said. And this stotra is daily, it is cited. Something significant, I think. But we are definitely believing in such things. And what we believe in Theosophy is, during individualization, soul has come. Till then, we had only the big body and no brain, or whatever buddhi was not there, and that was brought. So I am very happy to listen about the Ganesha and what it is said in Purana and Stotra, which we recite daily. And what I say,
These 12 are concerned with our 12 chakras. Actually, there are 12 chakras. We study only 7 chakras, but 12 chakras are there. And when we recite these, they may be getting activated. I don't know, but we have to experience and believe in it and experience it. That is the only thing we can tell here. Thank you very much for giving me this opportunity. Once again, I congratulate everybody has contributed very nicely. Thank you. Thank you. थैंक यू संजय जी, बहुत ही बढ़िया आपके वचन तो एकदम उस विषय को और बढ़ा देते हैं और डीप में ले जाते हैं। वक्ताओं में से नंद कुमार जी या हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाहें? हमारे साथ आज अशोक लोखंडे जी जुड़े हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें। वसुमती जी हैं, वसुमती जी अगर आप सुन रही हो और कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। अशोक जी, उनका शायद कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है ठीक से। और कोई कुछ कहना चाहता है? जी हाँ, अशोक जी आ गए। हाँ अशोक जी बोलिए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। तरल जी, गणपति का उत्सव चल रहा है, बहुत मैं इतना ही कहता हूँ कि आज के तीनों वक्ताओं ने बहुत अच्छा गणपति के बारे में अपना वक्तव्य दिया है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और आपने इस पर्व का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आजू बाजू में बहुत माइक है गणपति स्थापना का, इसलिए मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और कोई? सुषमा जी आपके कुछ वचन? जी हाँ तरल जी, नमस्कार सबको। बहुत अच्छा जो है वो प्रस्तुति थी आज की। बस मैं थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है उसको शेयर करना चाहती हूँ बिल्कुल। कि गणेश जी के यदि हम देखते हैं कि चूहा उनकी सवारी है और हाथी उनका मुख है। क्या बात? तो मैमल्स में सबसे छोटा चूहा है और मैमल्स में मिडिल में मनुष्य है और मैमल्स में सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है। तो एक तरह से ये एक सामंजस्य का प्रतीक है। एक बात ये हो गई कि चूहा, मनुष्य और हाथी जो मैमल्स में एक क्रम में आते हैं। दूसरी बात, गणेश जी चूंकि योग के देवता हैं, हम अक्सर देखते हैं कि गणेश जी की सूंड कभी दाईं तरफ मुड़ी है। कब मेरी आवाज आ रही है तरल जी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। हाँ, गणेश जी की सूंड कभी दाईं ओर मुड़ी है, कभी बाईं ओर मुड़ी है, कभी सीधी है, कभी अंदर की ओर मुड़ी होकर लड्डू के पात्र में रखी है। जी। तो ये प्रतीक जो है वो सामान्य नहीं है, ये बहुत विशिष्ट प्रतीक है। हमारे सुषुम्ना नाड़ी, हमारे पीछे सुषुम्ना नाड़ी के दाएं और बाएं की तरफ, बाएं जो है वो ईड़ा नाड़ी है और दाएं तरफ पिंगला नाड़ी है। जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी है, वह राजयोग का प्रतीक है। जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, वो जल तत्व का प्रतीक है, वो चंद्र नाड़ी है। तो जब उनकी सूंड चंद्र नाड़ी की ओर मुड़ी हुई है, यानी ईड़ा नाड़ी की ओर मुड़ी हुई है, इसका मतलब वह मोह और पाश का प्रतीक है, वह जल तत्व का प्रतीक है और जल का स्वभाव जो है मोह का होता है। जब उनकी सूंड जो है वह दाहिने तरफ मुड़ी हुई है, पिंगला नाड़ी की तरफ मुड़ी हुई है, वह जो है अग्नि नाड़ी है और उसका जो स्वभाव है वो रजोगुणी है, उसका संबंध शक्ति से है। और जब वो उनकी सूंड सीधी है और अंदर पात्र पे में रखी हुई है, इसका मतलब है कि उनका जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, वो जो उनका संचालन है वह बिल्कुल संतुलन में है और वह आत्मा की अमरता का प्रतीक है, वो अग्नि बीज है और इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जब हम शादियों में कार्ड बनाते हैं तो गणेश जी के सूंड को लड्डू पे रखते हैं, यानी इस भौतिक संसार में हम आए हैं और इस भौतिक संसार में हमारा लिप्तता का वो प्रतीक है, यानी हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं। तो इस तरह से जो गणेश जी की सूंड बनी है वो साभिप्राय है, ऐसा नहीं कि कहीं भी सूंड मुड़ी है उसका कुछ भी अर्थ है। और गणेश जी के सूंड है उसका वो ओम के आकार की है और ओम जो है वो 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ उ अ मा।
और ओम से ही सारे मंत्र प्रारंभ होते हैं, इसलिए गणेश जी को वाणी विनायक भी कहा गया है। बस यही मुझे कहना था और सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और शिंदे साहब ने उसको और विस्तार से बताया और तीनों वक्ताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको विशेष तौर से धन्यवाद कि जो आप ऐसे विषयों पर जो है आयोजन करते हैं। धन्यवाद तरल जी। धन्यवाद बहुत बहुत सुषमा जी। और आपके भी जो एक सुवचन रहते हैं अंतिम में वो बहुत ही प्रासंगिक और करेक्ट होते हैं। जी, अन्य कोई शेयर करना चाहे तो? बासुमती जी के पास नहीं जा रही। हाँ, आभा जैमिन जी आ गई हैं आज, क्या बात। बोलिए आभा जी, अपने आभा बिखेरिए। अच्छे तो आपकी बहुत सुंदर आभा दिख रही है। सबसे पहले तो आप सभी विद्वानों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी आज इतना इतना ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भी गणेश चतुर्थी। सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज केवल एक लिसनर के रूप में आई हूँ और मेरा ये मानना है कि पहले चीजों को मैं आत्मसात करूं, उसके बाद कुछ बोलूं। तो अभी वो आत्मसात की प्रक्रिया चल रही है। जी अभी प्रिजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि जितना कानों को इतना अच्छा लगता है तो बहुत बहुत सेशंस में, लेकिन सुनना बहुत कभी कभी मिल पाता है। और मैं आई एम लकी एनफ टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन, ये मैं कह सकती हूँ। बस इतने आप सभी विद्वानों का मुझे जो ये प्राप्त है, सभी से कुछ न कुछ सीख रही हूँ। और ये जीवन में जितना जीवन अभी बचा है उतना सब सीखने को मिले तो बहुत अच्छा है। डे टू डे लर्निंग है। तो बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, बधाई। इतना अच्छा आप लोगों ने बोला। आज हम लोगों का एक जगह और भी सेशन चल रहा था, लेकिन मैं अभी उसको छोड़ के यहाँ जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया, तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी नई नई जानकारियां मिल रही हैं, उन सब के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, सभी विद्वज्जनों का शुक्रिया। और विशेषकर जो सुषमा जी ने कहा, तो मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसके बारे में मैं जरूर एक कुछ न कुछ शोध करूंगा और विभिन्न जो उनके सूंड के पोजिशंस हैं और जैसा आपने बताया उसके बारे में कुछ मिले तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं एक और सेशन इस पर करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो एकदम सुषमा जी हमारे लिए एक बिल्कुल नया विषय था जानने का कि मतलब यूं ही उनकी सूंड कभी लड्डू पर तो कभी उसमें। और अभी जो मैंने चित्र बनाया हुआ था और जो दिया जिसमें उनके पूरे भव्य रूप के एक एक चीजों के बारे में वर्णन था, उसके पास उनके सूंड में कलश है। तो ये भी शायद कोई उसका सूचक होगा सुषमा जी। और जो गले इन्होंने कमर में सर्प बांध रखा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी जो लोअर एनर्जी है वो सेक्स एनर्जी को उन्होंने कहना चाहिए कि उसको संतुलन में कर रखा है। तो हर एक सिंबल जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वह किसी एक दार्शनिक विचारधारा को बताता है। जी नहीं नहीं, बहुत ही अद्भुत बताया आपने। केशवर जी कुछ और कहना चाहते हैं आप? कुछ और ज्ञान हमें मिल जाए। हम तो यही तरसते रहते हैं कि बस जो अंतिम 5 मिनट बचे हैं तो कुछ और हासिल हो। वसुमती जी शायद नहीं सुन पा रही है, हालांकि वो ज्वाइन तो हुई है। एनीवे, हर्षवर्धन भाई कुछ कहना है आपको? अतुल भाई, अर्चना जी, क्या हम वाइंड अप? मुझे महत्व तो पता नहीं, मगर गणपति जी का एक चीज अच्छा लगता है कि मैं गणपति जी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो हम लोग ने उनको इतनी सारा 5 फूल की पत्तियां भी रख दे, उसमें हमको गणपति जी दिख जाते हैं। जासूद के फूल की सूंड हमको वो डंडी हमको उनकी सूंड दिख जाती है। आई थिंक द मोस्ट क्रिएटिव एंड फ्री फॉर्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट से आप गणपति जी को देख सकते हैं। वो मुझे अच्छा लगता है कि गणपति जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कहीं भी देख लो। वो एक बहुत ही क्रिएटिविटी की चरम सीमा मुझे उन पे लगती है और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू। मुझे अपने अपने से लगते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात, ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अन्य कोई? सर एक चीज और मैं कहूंगी, गणपति जो है सिंप्लिसिटी के द्योतक हैं। हर चीज उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई की है। जैसे स्कंद के साथ हुआ कि कौन अग्रगण्य में कौन पूजा करेगा, तो उन्होंने सिर्फ माता पिता की पूजा की, प्रदक्षिणा की,
और वो फर्स्ट आए, जबकि स्कंद ने पूरा तीनों लोकों में किया। और एक प्रसन्न बदन, हमेशा प्रसन्न चित्त, ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जिसका श्री कृष्ण ने भी बताया कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। और एक सिंप्लीफाई, हर चीज को सिंप्लीफाई किया। तो ये दो चीज जो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो उनकी जो विशेषताएं जो मुझे अपील करती, वो मुझे उनकी दो खासियत लगती है, जो मेरा पर्सनल है। जी बहुत बहुत जी। तो मेरे ख्याल से कोई और प्रश्न है नहीं, और चैट बॉक्स में भी कुछ लिखा नहीं है, तो आज सोचते हैं कि क्या समापन की ओर चलें। तो अतुल भाई प्लीज गो अहेड। કેશવરબેન આપણને શિવોમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संनो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः
चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत धन्यवाद केशवर जी, बहुत खूब खूब धन्यवाद आप सभी। भाई नंद कुमार जी बहुत बढ़िया है आज तो नंद कुमार जी। या जितने भी लोग आए हैं सब लोग